everyone, I am Haritika Sharma and welcome to Haritika School of Political Science. So today we are going to study Contemporary South Asia Part 2. So in the previous video हमने Part 1 समझा था जिसमें हमने What is South Asia, India, Pakistan and India, Bangladesh को देखा. Now in this video we are going to study about Nepal, Sri Lanka and SAARC. So let's get started. Okay, firstly talking about monarchy and democracy in Nepal. So Nepal was a Hindu kingdom in the past and then a constitutional monarchy in a modern period for many years. तो नेपाल क्या था, पास्ट में एक हिंदू किंगडम था and then a constitutional monarchy in the modern period for many years. Constitutional monarchy मतलब जहाँ पर monarchy भी है but that country has a constitution also. Fine. Now throughout this period, political parties and the common people of Nepal wanted a more open and responsive system of government. But the king, with the help of army, retained full control over the government and restricted the expansion of democracy in Nepal. So नेपाल क्या था, नेपाल में क्या था, मोनार्की था. तो ऑब्वियसली जब मोनार्की है तो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट तो होगी नहीं. बट वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो पब्लिक थी, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि थोड़ी ओपननेस तो आई गवर्नमेंट में. लेकिन जो किंग था, द किंग विद द हेल्प ऑफ हिज आर्मी रिटेन्ड हिज full control over the government and restricted the expansion of democracy in Nepal. Fine. Okay, so the king accepted the demand for a new democratic constitution in 1990 in the wake of a strong pro-democracy movement. अब as the people and the political parties wanted more openness in the system, more openness in the government, तो नेपाल देखता है एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट. सो नेपाल में क्या होती है, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट होती है. एंड इन द वेक ऑफ दैट मूवमेंट किंग वाज कंपेल्ड टू इंट्रोड्यूस सम फ्रीडम, सम लिबर्टी इन द सिस्टम. तो एक डेमोक्रेसी तो लाई गई लेकिन बहुत लिमिटेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाई गई. फाइन. Now during the 90s, the Maoists of Nepal were successful in spreading their influence in many parts of Nepal. They believed in armed insurrection against the monarch and the ruling elite. अब Maoists क्या होते हैं, Maoism क्या होता है? So Maoism is a sort of communism and this was introduced by Mao Zedong of China. ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था Mao Zedong के बारे में. So ये जो Maoism था, it was introduced by Mao Zedong. और Maoism जो नेपाल में था, it was influenced by Naxalite in India. So Naxalite movement जो इंडिया में हुई, तो Maoism in Nepal was influenced by that. तो ये statement जो है, they believed in armed insurrection against the monarch and the ruling elite. ये दिखाती है that it was a sort of communism. Because communism क्या है या Marxism क्या है? So communism is about armed insurrection या revolution अगेंस्ट द रूलिंग एलीट या फिर कैपिटलिस्ट या हैव्स के अगेंस्ट रिवोल्यूशन है. सो जो कम्युनिस्ट्स थे इन नेपाल, दे ऑल्सो बिलीव्ड इन आर्म्ड इंसरेक्शन अगेंस्ट द मोनार्क एंड द रूलिंग एलीट. रूलिंग एलीट, मोनार्क मतलब रिच पीपल, हैव्स, तो उनके अगेंस्ट वो आर्म्ड इंसरेक्शन चाहते थे. फाइन. Okay, for some time there was a triangular conflict among the monarchist forces, the Democrats and the Maoists. In 2002, the king abolished the parliament and dismissed the government, thus ending even the limited democracy that existed in Nepal. तो कुछ टाइम तक एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट चलता रहा है. ट्रायंगुलर 3 साइड्स होते हैं, वैसे ही एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट चलता रहा. किन किन के बीच में? मोनार्किस्ट फोर्सेस के बीच में, डेमोक्रेट्स के बीच में और माओइस्ट के बीच में. और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो एक लिमिटेड डेमोक्रेसी आई थी नेपाल में, 2002 में किंग ने वो भी अबॉलिश कर दी, वो भी एंड कर दी. फाइन. Now in April 2006, there were massive country-wide pro-democracy protests. The struggling pro-democracy forces achieved their first major victory when the king was forced to restore the House of Representatives that had been dissolved in April 2002. तो 2006 में मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट्स होती हैं और जो प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स थे वो उन्होंने थोड़ी सी विक्ट्री कब हासिल कर ली, जब द किंग वाज कंपेल्ड टू रिस्टोर द
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दैट हैड बीन डिसॉल्व 2002 में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसॉल्व कर दिया था, जब ये कन्फ्लिक्ट की वजह से जो किंग था उसने लिमिटेड डेमोक्रेसी भी ख़त्म कर दी थी। तो अब वो जो प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट नेपाल में, उसके चलते या फिर उस जो प्रोटेस्ट ने थोड़ा सा कंपेल कर दिया किंग को कि वो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसको फिर से रिस्टोर करे। ओके, so the largely non-violent movement was led by 7-party alliance, the Maoist and social activists. So largely non-violent movement किसने लीड की? 7-party alliance, एक अलायंस बनाई गई थी। दैट अलायंस वाज कॉल्ड 7-party alliance। माओइस्ट्स और सोशल एक्टिविस्ट्स ने मिलकर ये प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को लीड किया। Fine. Nepal's transition to democracy is almost complete. Nepal has undergone a unique moment in its history because it formed a constituent assembly to draft the constitution for Nepal. Okay. So some sections in Nepal thought that a nominal monarchy was necessary for Nepal to retain its links with the past. The Maoist group agreed to suspend the armed struggle. They wanted the constitution to include the radical programs of social and economic restructuring. तो क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कंजर्वेटिव्स, ये जो सेक्शंस थे नेपाल में जो चाहते थे कि नॉमिनल मोनार्की होनी चाहिए, तो इनके लिए एक वर्ड है कंजर्वेटिव्स। फाइन, कंजर्वेटिव्स बोलते हैं कि हमको जो अपना ट्रेडिशन से लिंक है वो एकदम ख़त्म नहीं करना चाहिए, बिकॉज ट्रेडिशन इज़ द कलेक्टिव विजडम ऑफ एजेस से चली आ रही है वो, और कलेक्टिव विजडम है लोगों की। और एक इंसान बोलता है कि मैं सबसे समझदार हूँ और ये सिस्टम गलत है, तो हम उस इंसान की बात ना मान के जो एजेस से प्रथा चली आ रही है हमको उसको मानना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द कलेक्टिव विजडम ऑफ एजेस। सो कंजर्वेटिव्स क्या बोलते हैं कि ये जो मोनार्की है ये ट्रेडिशन है नेपाल का, तो हमको एकदम लिंक ख़त्म नहीं करना चाहिए मोनार्की से, और एक नॉमिनल मोनार्क हमको रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूके में जो हेड ऑफ द स्टेट है ही स्टिल एंजॉयज अ हेरिडिटरी पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल क्वीन एलिजाबेथ के बाद अब जो उनके सन थे उनको किंग बनाया गया यूके का। सो इट मीन्स के यूके ने अपने ट्रेडिशन से अपने आप को एकदम ख़त्म नहीं किया, इट इज़ फॉलोइंग इट्स ट्रेडिशन, लेकिन साइड बाय साइड आपका इलेक्शंस भी होते हैं। यूके का एक प्राइम मिनिस्टर भी है जो हमारे इंडियन है, ऋषि सुनक, तो मतलब इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, तो उनका एक ट्रेडिशन भी है, बट साइड बाय साइड लिबर्टी भी है। सो माओइस्ट ग्रुप एग्रीड टू सस्पेंड आर्म स्ट्रगल। तो माओइस्ट ने भी बोला अच्छा ठीक है हम आर्म स्ट्रगल नहीं करेंगे, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ तो उसमें रैडिकल प्रोग्राम्स इंक्लूड करना, बिकॉज वो कम्युनिज्म ही है माओइज्म एक तरीके से। तो सोशल या इकोनॉमिक राइट्स, सोशल इकोनॉमिक लिबर्टी, ये सब बारे में वो बात करेंगे। तो उन्होंने भी कहा कि ऐसे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाओगे उसमें सोशल और इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, प्रोग्राम्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग। सो all the parties in the SPA did not agree with this program. SPA को वो agree नहीं था ये program. So the Maoist and some other political groups were also deeply suspicious of the Indian government and its role in the future of Nepal. अब ये जो Maoist थे they were suspicious of Indian government as well and its role in the future of Nepal. In 2008 Nepal became a democratic republic. Democratic republic मतलब जहाँ पर head of the state is elected. Fine, हेड ऑफ द स्टेट क्या है, वो इलेक्टेड है। सो नेपाल 2008 में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया एंड आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्की इन 2015 इट अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया नेपाल। इंडिया नेपाल के बारे में बात करते हैं। सो नेपाल एंड इंडिया एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप दैट हैज़ वेरी फ्यू पैरेलल्स in the world. A treaty between the two countries allows the citizens of the two countries to travel to and work in the other country without visas. So हमारे कंट्री और नेपाल के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था और उस एग्रीमेंट के तहत हमें अगर नेपाल जाना है या नेपाल के लोगों को अगर इंडिया आना है, सो वी डू नॉट रिक्वायर अ वीज़ा फॉर दैट। हम बिना वीज़ा के भी ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ डिस्पाइट दिस स्पेशल रिलेशनशिप द गवर्नमेंट्स ऑफ द टू कंट्रीज हैव हैड ट्रेड रिलेटेड disputes.
ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इंडिया और नेपाल में चलता आ रहा है इन द पास्ट, एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑफन एक्सप्रेस डिस्प्लेजर एट द वार्म रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड चाइना एंड एट नेपाल गवर्नमेंट्स इन एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडियन एलिमेंट्स। तो कुछ टेंशंस तो है ही, जैसे ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स है इंडिया और नेपाल के बीच में, और जब भी नेपाल अपना जो रिलेशन है चाइना के साथ वार्म और कॉर्डियल बना लेता है तो इंडिया के लिए वो एक इरिटेंट बन जाता है। और जो नेपाल गवर्नमेंट है अगर वो मतलब बार बार कोई इन एक्शन लेती है अगेंस्ट एंटी इंडियन एलिमेंट्स तो वो भी इंडिया की आंख में थोड़ा खटकता है। Okay, now Indian security agencies see the Maoist movement in Nepal as a growing security threat given the rise of Naxalite group in various Indian states from Bihar in north to Andhra Pradesh in the south. तो नेपाल में अगर माओइस्ट मूवमेंट चलता है then this also poses a threat of Naxalite groups और Naxalite movements in Indian states जैसे कि बिहार in the north and आंध्र प्रदेश in the south। तो जो माओइस्ट हैं नेपाल में वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं Naxalites इंडिया में भी। फाइन, okay, many leaders and citizens in Nepal think that the Indian government interferes in its internal affairs and has designs on its river waters and hydroelectricity and prevents Nepal, a landlocked country, from getting easier access to the sea through Indian territory. Nevertheless, Indo-Nepal relations are fairly stable and peaceful. तो मैंने पिछले चैप्टर में भी बात की थी कि ये जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, बिकॉज इंडिया जोग्राफिकली इकोनॉमिकली बहुत बड़ा है, ठीक है, पॉलिटिकली भी बहुत बड़ा है, सो उनको डर लगता है कि ये जो इंडिया है वो कहीं रीजनल बुली की तरह काम ना करे, वो बिग ब्रदर एटीट्यूड ना रखे उनके साथ। बिग ब्रदर एटीट्यूड मतलब जैसे बड़े भाई होते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना है, या फिर थोड़ा डिक्टेटरशिप अथॉरिटेरियन वैसा ना हो जाए इंडिया। तो नेपाल को भी ऐसा सस्पेशन है इंडिया के बारे में कि इंडिया के कुछ प्लान्स हैं ओवर इट्स रिवर वाटर्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और नेपाल अगर हम देखेंगे मैप में तो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब उसका सी के साथ, ओशन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। तो वो बोलता है उसका इंडिया के साथ रिलेशन क्यों ख़राब है, क्योंकि वो बोलता है कि इंडिया हमको ईजियर एक्सेस टू द सी नहीं देता। फाइन, और इंडो नेपाल रिलेशन अभी तो स्टेबल है एंड पीसफुल है। ओके, डिस्पाइट डिफरेंसेस, ट्रेड, साइंटिफिक कॉपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स होल्ड द टू कंट्रीज टुगेदर। सो बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर दोनों कंट्रीज कॉपरेट भी करती है। वो एरियाज़ क्या क्या हैं? ट्रेड, साइंटिफिक कॉपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स। फाइन, ओके, नाउ यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है नेपाल, एंड नाउ वी आर मूविंग टू एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। सो आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, पॉलिटिक्स इन श्रीलंका was dominated by forces that represented the interests of majority of Sinhala community. So जब श्रीलंका का इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद जो उधर फोर्सेस एक्टिव थी उन्होंने किसको रिप्रेजेंट किया? उन्होंने रिप्रेजेंट किया मेजॉरिटी सिन्हला कम्युनिटी इन श्रीलंका। फाइन, ओके, दे वर हॉस्टाइल टू अ लार्ज नंबर ऑफ तमिल्स who had migrated from India to Sri Lanka and settled there. This migration continued even after independence. Sinhala nationalists thought that Sri Lanka should not give concessions to the Tamils because Sri Lanka belonged to the Sinhala people only. The neglect of Tamil concerns led to militant Tamil nationalism. सो वहाँ के जो सिन्हला नेशनलिस्ट थे, मतलब उधर श्रीलंका में क्या है, इंडिपेंडेंस से पहले भी काफ़ी तमिल्स श्रीलंका जाते थे, इंडियन तमिल श्रीलंका जाते थे और उधर ही सेटल हो गए, और इंडिपेंडेंस के बाद भी तमिल्स का उधर माइग्रेशन कंटिन्यूड रहा। तो सिन्हला जो नेशनलिस्ट्स हैं या सिन्हलीज पीपल जो हैं, दे आर वेरी मच अगेंस्ट, और द फोर्सेस एक्टिव एट दैट टाइम दे वर वेरी मच अगेंस्ट द श्रीलंकन तमिल्स। तो वो बोलते थे जो श्रीलंका है इट बिलोंग्स टू सिन्हला पीपल ओनली, और
तमिल्स को कोई कंसेशन नहीं देना चाहिए, फाइन। और जब भी किसी कंट्री में एक्सट्रीमिज्म आ जाता है ना, जब भी सुपीरियोरिटी की भावना आ जाती है, मेजॉरिटेरियनिज्म आता है, तो वहाँ पर माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है वो नेशनलिज्म को ज़रूर लीड करते हैं। दिस हैपेंड इन श्रीलंका ऑल्सो। तो वहाँ पर जो तमिल हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, एंड दिस लेड टू तमिल नेशनलिज्म, और LTT was formed. Fine, LTT, this is the flag of LTT, fine, okay. So from 1983 onwards, the militant organization, the Liberation Tigers of Tamil Eelam, has been fighting an armed struggle with the army of Sri Lanka and demanding Tamil Eelam or a separate country for the Tamils of Sri Lanka. So the LTT has been fighting an armed struggle with the Sri Lanka's army, and they are demanding a separate Tamil Eelam. जो ये Indian Tamils हैं, they are concentrated in northeastern part of the region, या northeastern part of the Sri Lanka. So they want कि ये जो northeastern part है इसको Tamil Eelam बना दो, मतलब एक country for Tamils बना दो, fine. Okay, so the LTT controls the northeastern parts of Sri Lanka. The Sri Lankan problem involves people of Indian origin, and there is considerable pressure from the Tamil people in India to the effect that the Indian government should protect the interests of the Tamils in Sri Lanka. Fine. तो वहाँ पर जो तमिल हैं तो ऑब्वियसली उनका इंडियन ओरिजिन है, तो इंडिया के जो तमिल्स हैं वो गवर्नमेंट को काफ़ी बार प्रेशराइज करते हैं कि वहाँ पर जो तमिल्स हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो, फाइन। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने उधर थोड़ा सा इंटरफेरेंस करने की कोशिश भी की, बट दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय श्रीलंकन पीपल, एंड इंडियाज पीस कीपिंग फोर्सेस वर पुल्ड बैक फ्रॉम श्रीलंका। और उसके बाद से इंडिया की जो पॉलिसी है टुवर्ड श्रीलंका वो डिसएंगेजमेंट की पॉलिसी है, कि जो उधर के इंटरनल इश्यूज हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें इंडिया इंटरफेयर नहीं करेगी। So, the government of India has from time to time tried to negotiate with the Sri Lankan government on the Tamil question. But in 1987, the government of India for the first time got directly involved in the Sri Lankan Tamil question. So, in 1985, the government of India for the first time got directly involved, directly intervention किया किसमें? Sri Lankan Tamil question में. Okay, India signed an accord with Sri Lanka and sent troops to stabilize relations between Sri Lankan government and the Tamils. So, India ने एक accord sign किया with Sri Lanka और कुछ troops भेजे to stabilize relations between Sri Lankan government and the Tamils. Eventually, the Indian army got into a fight with the LTT, और Indian army की किसके साथ fight शुरू हो जाती है? LTT के साथ ही fight शुरू हो जाती है. The presence of Indian troops was not liked much by the Sri Lankans. They saw this as an attempt by India to interfere in the internal affairs of Sri Lanka. In 1989, Indian peacekeeping forces pulled out of Sri Lanka without attaining its objective. Okay. The Sri Lankan crisis continued to be violent. However, international actors, particularly the Scandinavian countries such as Norway and Iceland, tried to bring the warring groups back to negotiation. So, Scandinavian countries जो हैं उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया कि जो warring groups है, जो आर्मी के बीच में, श्रीलंकन आर्मी के बीच में और LTT के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें नेगोशिएशन हो जाए और ये लड़ाई ख़त्म हो जाए, फाइन। Okay, finally the armed conflict came to an end as LTT was vanquished in 2009. So this picture shows Rajapaksa, who is the head of the government, fine, and he is trying to balance the Sinhala. This monkey denotes Sinhala and tiger denotes LTT or Tamils. So he is trying to balance Sinhala and Tamils, fine. Okay, after the military intervention in 1987, the Indian government now prefers a policy of disengagement vis-a-vis Sri Lanka's internal troubles. India signed a free trade agreement with Sri Lanka which strengthened relations between two countries. India's help in post-tsunami reconstruction in Sri Lanka has also brought the two countries closer. So 2004 में एक deadly tsunami आती है श्रीलंका में, और जो इंडिया ने पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया श्रीलंका में, सो दिस हेल्प्ड इन स्टेबलाइजिंग इन इम्प्रूविंग द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड ब्रॉट द टू कंट्रीज क्लोजर टू ईच अदर, फाइन।
Okay, now talking about India and other neighbors. So India enjoys a very special relationship with Bhutan too and does not have any major conflict with the Bhutanese people. The efforts made by the Bhutanese monarch to weed out the guerrillas and militants from northeastern India that operate in his country have been helpful to India. So Bhutanese government ने किस में crucial role play किया, तो वहाँ से जो एंटी इंडियन मिलिटेंट्स नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको वीड आउट करने में, उनको ख़त्म करने में भूटानीज गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. फाइन, विच इम्प्रेस्ड इंडिया. India is involved in big hydroelectric projects in Bhutan and remains the Himalayan kingdom's biggest source of development aid. So Himalayan kingdom here means Bhutan. भूटान को मेजर सोर्स, भूटान के लिए मेजर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड कौन है? इंडिया. फाइन. So these are some facts about India-Bhutan relationship. Now talking about India and Maldives. So India's ties with the Maldives remain warm and cordial. In November 1988, when some Tamil mercenaries from Sri Lanka attacked the Maldives, the Indian Air Force and Navy reacted quickly to the Maldives' request to help stop the invasion. India has also contributed towards islands economic development, tourism and fisheries. So India ने किस में contribute किया है? To the islands economic development, tourism and fisheries. और जब तमिल mercenaries ने Maldives में अटैक किया था, so Maldives गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने उनको वो mercenaries को स्टॉप किया था. फाइन. Okay, now India has various problems with its smaller neighbors in the region. Given its size and power, they are bound to be suspicious of India's intentions. As I discussed before, big brother attitude. Fine. Okay, the Indian government on the other hand often feels exploited by its neighbors. It does not like the political instability in these countries, fearing it can help outside powers to gain influence in the region. अच्छा, अब इंडिया को भी प्रॉब्लम है इट्स उसके नेबर्स के साथ. क्यों नेबर्स के साथ? क्योंकि हम अगर देखें साउथ एशिया के अदर कंट्रीज़ को, तो वहाँ पर काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है. फॉर एग्जांपल, मैंने पिछले जो वीडियो थी उसमें भी बताया था कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका सिर्फ यही दो कंट्रीज़ हैं जो इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक डेमोक्रेटिक हैं और बाकी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी चल नहीं पाई ज़्यादा. जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें, सो देयर मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. कभी मिलिट्री आ जाती है, कभी डेमोक्रेसी आ जाती है. ऑल्दो बांग्लादेश तो डेमोक्रेसी रहा है इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, लेकिन पाकिस्तान का हाल हमको पता है. और नेपाल भी हमने देखा कि वो कब जाके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना और कब 2015 में तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया. भूटान में भी हमने देखा, मालदीव्स में भी सल्तनत थी, वो हमने पढ़ा था. सो अगर ऐसी इंस्टेबिलिटी रहेगी इस रीजन में तो बाकी के जो कंट्रीज़ हैं उनको बहुत अच्छा एडवांटेज, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपना जो इन्फ्लुएंस है इन द रीजन उसको इंक्रीज़ कर पाए, विच चाइना इज़ डूइंग राइट नाउ. सो चाइना अपना इन्फ्लुएंस इन द रीजन इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है. तो इसकी वजह से इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है कि इंडिया बोल रहा है कि अगर ऐसी इंस्टेबिलिटी रहेगी तो हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो इंस्टेबिलिटी है, उसका फ़ायदा नॉन रीजनल पावर्स उठाएंगे. फाइन. ओके. The smaller countries fear that India wants to be regionally dominant power. Again, big brother attitude thing. Not all conflicts in South Asia are between India and its neighbors. Nepal and Bhutan, as well as Bangladesh and Myanmar, have had disagreements in the past over the migration of ethnic Nepalis into Bhutan and the Rohingyas into Myanmar respectively. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट है, उनमें आपस में भी कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं. फाइन. ओके. बांग्लादेश एंड नेपाल हैव हैड सम डिफरेंसेस ओवर द फ्यूचर ऑफ
हिमालयन रिवर वाटर्स, इनके बीच में इस चीज़ को लेके डिस्प्यूट है, हिमालयन रिवर वाटर्स को लेके। हाउएवर मेजर कन्फ्लिक्ट्स जो है वो इंडिया और बाकी के नेबर्स के बीच में ही है, क्योंकि उस इंडिया की साइज, उसका सेंट्रल पोजीशन साउथ एशिया रीजन में बहुत मतलब उसका सेंट्रल पोजीशन है। एंड इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज इन द साउथ एशिया। सो अगर हम इधर एक मैप बनाएं इंडिया का, फाइन, इंडिया का अगर मैप बनाएं, सो दिस इज़ अ रफ मैप। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, सो यहाँ श्रीलंका है, मालदीव्स है। सो इंडिया की पोजीशन इतनी सेंट्रल है दैट इट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज इन द रीजन, ठीक है, सभी कंट्रीज के साथ इन द रीजन वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सो दैट इज़ द रीज़न के उसके सबके साथ कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। So the major conflicts and differences though are between India and the others, partly because of the geography of the region in which India is located centrally and is therefore the only country that borders the others. Okay, now talking about SAARC. तो although ये जो countries हैं in the region, they have been fighting among themselves, तो एक दूसरे के साथ ये लड़ती रही, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कॉपरेशन की, उनको फ्रेंडली जो रिलेशनशिप है उनको अहमियत पता है, एंड दैट इज़ वाई सार्क वाज फॉर्म्ड। सार्क जैसे हमने आसियान पढ़ा, जैसे हमने EU पढ़ा जो रीजनल कॉपरेशन के लिए बनाया गया, वैसे ही सार्क एक रीजनल कॉपरेशन के लिए ग्रुप बनाया गया जिसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। बट दिस हैज़ नॉट बीन मच सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में, और जो मेजर प्रॉब्लम है वो है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इरिटेंट है सार्क में और बहुत बड़ा हर्डल है इन द सक्सेस ऑफ सार्क। फाइन। So in spite of many conflicts, the states of South Asia recognize the importance of cooperation and friendly relationship among themselves. The South Asian Association for Regional Cooperation, so this is the full form of SAARC, is a major regional initiative by South Asian states to evolve cooperation through multilateral means. Fine. It began in 1985. Unfortunately, due to persisting political differences, SAARC has not had much success. SAARC members signed the South Asian Free Trade Agreement, which promised the formation of free trade zone for the whole of South Asia. The agreement was signed in 2004 and came into effect on 1st January 2006. So इन सब कंट्रीज ने मिलके एक साफ्टा भी साइन किया 2004 में टू क्रिएट फ्री ट्रेड जोन, ताकि जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है या इकोनॉमिक रिलेशंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाए। लेकिन कुछ लोग इसके अगेंस्ट, कुछ कंट्रीज इसके अगेंस्ट है, उनको लगता है कि ये एक इंडिया इसके थ्रू अब हमारी जो मार्केट्स है उनको इन्वेड करना चाहता है, उनको फ्लड करना चाहता है विद इट्स गुड्स, इंडिया के गुड्स। बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज़ को इन द रीजन और इंडिया को, तो इंडिया की इतनी तो क्वालिटी है कि वो उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो उनकी क्वालिटी से अच्छे ही होंगे, और अगर इंडिया के गुड्स उनकी मार्केट्स को फ्लड करते हैं, देन the people will be buying India's goods and not the local products. तो उनकी local industries कैसे चलेगी? So that is why the regional members या फिर the regional countries are against this SAFTA thing, और Indians को भी लगता है कि इंडिया के already bilateral agreements हैं with श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान, तो उसको ज़रूरत ही क्या है SAFTA की। फाइन। सो साफ्टा के बारे में थोड़ा देखते हैं। दैट इट वाज साइन इन 2004 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 1st January 2006. साफ्टा एम्स एट लोअरिंग ट्रेड टैरिफ्स को लोअर करने में its aim is lowering trade tariffs. Fine. Okay, but some of our members fear that SAFTA is a way for India to invade their markets and to influence their societies. India उनकी markets को invade कर सकता है और उनकी societies को influence कर सकता है, and politics through commercial ventures and a commercial presence in their countries. India thinks that there are real economic benefits for all from SAFTA and that a region that trades more freely will be able to cooperate better on political issues. लेकिन इंडिया को लगता है अगर SAFTA हो जाता है then that will be beneficial for
everyone, means for all the regional powers. क्यों? क्योंकि जब भी हम कॉमर्शियली कॉपरेट करेंगे तो जो पॉलिटिकल इश्यूज होंगे वो उन पे हम बेटर कॉपरेट कर पाएंगे, बिकॉज व्हेन वी आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो जो अगर हम पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करें तो उनको हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, या फिर उस पर हम थोड़ा कॉपरेट ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स दे आर इंटरडिपेंडेंट. एक दूसरे के बिना ना पॉलिटिक्स चलती है ना इकोनॉमिक्स चलती है. सो दैट इज व्हाई इंडिया इज इन सपोर्ट ऑफ SAFTA. Okay, some in India think that SAFTA is not worth the trouble, since India already has bilateral agreements with Bhutan, Nepal, Sri Lanka. Bhutan, Nepal, Sri Lanka के साथ तो already bilateral agreements हैं, और पाकिस्तान तो वैसे भी किसी काम का नहीं है, तो इतना कुछ SAFTA का importance बन नहीं जाता. Okay. So now talking about the role of non-regional players in the region. Fine. Okay, so no region exists in a vacuum. It is influenced by outside powers and events, no matter how much it may try to insulate itself from non-regional powers. China and the United States remain key players in South Asian politics. So कोई भी रीजन कितना भी कोशिश कर ले कि वो आउटसाइड पावर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, लेकिन वो आ ही जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आसियान की भी बात करें, सो आसियान इज प्रेजेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना. फाइन. तो वैसे अगर हम सार्क की बात करें या साउथ एशियन रीजन की बात करें, तो वैसे भी यहाँ पर तो कितनी पुअर कंट्रीज़ हैं, तो उनको जो यहाँ पर जो आउटसाइड पावर्स हैं वो भी उनके इन्फ्लुएंस में आई जाती है. जैसे हमने अभी देखा कि अगर नेपाल कॉर्डियल रिलेशंस बनाता है चाइना के साथ, तो हमारे लिए वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है. तो अगर कोई रीजन कितना भी अपने आप को इंसुलेट करने की कोशिश कर ले, लेकिन we can't ignore the role of outside powers in the region. Fine. Okay, Sino-Indian relations have improved significantly in the last 10 years, but China's strategic partnership with Pakistan remains a major irritant. The demands of development and globalization have brought the two Asian giants closer, and their economic ties have multiplied rapidly since 1991. So ये आपकी बुक में दिया हुआ है, बट प्रेजेंटली द सिचुएशन इज़ नॉट दिस. साइनो इंडियन रिलेशंस कुछ खास अच्छे नहीं हैं. अभी हमने G20 में भी देखा कि चाइना ने G20 जो इंडिया में हुई उसको अटेंड नहीं किया. एशियन गेम्स में जो अरुणाचल प्रदेश से इंडियंस जा रहे थे उनको आने से मना किया था, और कुछ ना कुछ ऐसा करता ही रहता है. BRI के बारे में बात करें तो इंडिया BRI को अपोज करता है, क्योंकि चाइना का BRI पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास होता है. सो प्रेजेंटली गालवान क्राइसिस हुए थे, गालवान स्किर्मिशेस हुए थे बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो प्रेजेंटली सिचुएशन इज़ नॉट गुड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड नॉट ओनली इंडिया बल्कि बाकी की जो कंट्रीज़ हैं दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट देयर सप्लाई चेन्स अवे फ्रॉम चाइना. इसलिए वो इंडिया को फोकस करें, बिकॉज वो चाइना पे इकोनॉमिकली इतना डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि वो इतना इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है चाइना, कि उनको कुछ और रीजन में कोई ऐसा कंट्री चाहिए जिसपे वो अब अपनी डिपेंडेंसी चाइना से हटकर उस पर थोड़ा सा डिपेंड कर सकें मार्केट के लिए एंड सब चीज़ों के लिए. फाइन. Okay, so American involvement in South Asia has rapidly increased after the Cold War. The US has had good relations with both India and Pakistan since the end of Cold War, and increasingly works as a moderator in India-Pakistan relations. So US भी एक major role play करता है in the South Asian region, और उसके relations अच्छे रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के साथ in post Cold War era. कोल्ड वॉर से पहले तो इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं थे यूएस के. यूएस वाज मेनली सपोर्टिंग पाकिस्तान. एक तो रीज़न ये था कि नॉन अलाइनमेंट थी इंडिया की. देन 1971 वाली पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली रशिया के साथ, जिसके बाद इंडिया बिकेम द डी फैक्टो अलाई ऑफ रशिया और यूएसएसआर. तो वो भी एक इरिटेंट था यूएस के लिए. So economic reforms and liberal economic policies in both countries have greatly increased the depths of American participation in the region. The large South Asian diaspora in the US and huge size of population and markets of the region also give America an added stake in the future of regional security and peace.
सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन.